پاکستان نے بھارت کو جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق میں لکھا جائے گا. کہا تھا کہ بھارت نے کچھ کیا تو منہ توڑ دیں گے. وہی بات سچ ثابت ہوئی اور بھارت کو منہ توڑ جواب ملا. ہم نے بھارت کے ساتھ طیارے مار گرائے. فیلڈ مارشل عاصم منی نے کلیدی کردار ادا کیا. وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سے خطاب. امریکی صدر ٹرمپ کی تعریف. بولے کہ صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو نتائج بھیانک ہوتے. ٹرمپ امن کے داعی ہیں, ان کو نوبل انعام ملنا چاہیے. Today we face particularly from foreign funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan, including the dastardly Jafar Express train incident. وزیر اعظم نے بھارت کا دوغلا چہرہ دنیا کے سامنے عیاں کر دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت پاکستان میں براہ راست دہشت گردی کر رہا ہے. بھارتی اسپانسر دہشت گرد افغان راستے سے پاکستان آ رہے ہیں. کالعدم TTP, مجید بریگیڈ اور BLA براہ راست معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث ہیں. بھارت کا ہندوتا نظریہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو. پاکستان امن کے لیے 90,000 جانیں دے چکا. The plight of the Palestinian people is one of the most heart-wrenching tragedies of our times. This prolonged injustice is a stain on the global conscience and our collective moral failure. For nearly 80 years, the Palestinians have courageously endured Israel's brutal occupation. Each passing day brings new brutality. وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام عالم سے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ. جنرل اسمبلی خطاب میں کہا کہ پاکستان فوری طور پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے. غزہ میں جو کچھ جاری ہے وہ عالمی برادری کی مکمل ناکامی ہے. فلسطین میں اسرائیلی بربریت تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے. فلسطینیوں کی نسل کشی دہشت گردی ہے. اس دہشت گردی کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. وہ دن دور نہیں جب غزہ اور کشمیر دونوں آزاد ہوں گے. While we are confronted with the climate crisis, it demands the most urgent collective action. In 2022, Pakistan faced massive floods of humongous proportions that caused huge losses amounting to $34 billion and many valuable lives lost. This year again, we are dealing with another mega flood with thousands of villages washed away from the face of the earth, millions of people displaced, more than 1,000 killed. ماحولیاتی تبدیلی دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے. یہ چیلنج ہماری بقا کو خطرے میں ڈال رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے دنیا کو خبردار کر دیا. کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے. سنگین موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. حالیہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں سینکڑوں بستیاں, ہزاروں فصلیں تباہ ہو گئی. عالمی سطح پر کاربن کے خراج میں پاکستان کا حصہ 1% بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی سطح پر شاندار پذیرائی. وزیر اعظم شہباز شریف کے جنرل اسمبلی خطاب کے دوران ہال نعروں سے گونج اٹھا. وزیر اعظم کے خطاب کے دوران ہال میں پاکستان زندہ باد کے نعرے, شرکاء کی بھرپور تالیاں. وزیر اعظم نے خطاب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا. دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کو جنرل اسمبلی میں تاریخی سبکی کا سامنا
मुस्लिम ममालिक का बाइकॉट, नेतन्याहू की तकरीर के दौरान उठकर चले गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दिया। वजीर आजम हाउस ने अलामिया जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वजीर आजम ने कहा कि सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। सदर ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए मुखलिस हैं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी एशिया में बड़ी तबाही को टालने में मदद की है। वजीर आजम ने मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम की अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियत करार दे दिया। मुलाकात से कबल गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी चीफ मुलाकात के लिए आए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक अजीम शख्सियत और रहनुमा है। गजा की सूरत हाल बहुत खराब है। चाहते हैं कि यरगमाली वापस आ जाए। यरगमाली की रिहाई का मुआहदा जल्द हो सकता है। गजा के मामले पर नेतन्याहू और इस्लामी सरबराहान से मुलाकात हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात से कबल वाशिंगटन पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को तारीखी प्रोटोकॉल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आमद पर एंड्रयूज एयरबेस पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमेरिकी एयरफोर्स के आला अहदेदार ने रेड कारपेट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आजम की आमद पर एयरबेस पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। वजीर आजम के काफिले को सख्त सिक्योरिटी में रवाना किया गया। आलमी कामयाबियों के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में बेमिसाल तेजी। इंडेक्स तारीख की बुलंदतरीन सतह से तजावुज कर गया। कारोबारी रोज के दौरान इंडेक्स में 2700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। वजीर आजम का इजहार मुसर्रत, बोले कि मार्केट में तारीखी बुलंदी कारोबारी बिरादरी के एतमाद का मजर है। ये सफर कामयाबी से जारी रहेगा। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को मैच के बाद सियासी बयान देना महंगा पड़ गया। सूर्या कुमार यादव आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब करार। आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पर जुर्माना आयद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया है। मैच रेफरी ने सूर्या कुमार यादव का मौकिफ मुस्तरद कर दिया। फैसले की मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने मैच के बाद मुतनाज़िर सियासी बयान जारी किया था। आईसीसी ने हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की पेशी का फैसला सुना दिया है। हारिस रऊफ को इशारा करने पर मैच फीस का जुर्माना आयद, आइंदा ऐसा न करने की भी वार्निंग। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों को लेवल 1 मुजरिम का मुर्तकब करार दिया। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर मैच फीस का जुर्माना आयद किया गया, जबकि इशारा करने पर वार्निंग दी गई। साहबजादा फरहान को बैट बंदूक की तरह लहराने पर सिर्फ वार्निंग जारी। सिंध काबीना में रद्दोबदल। गवर्नर हाउस कराची में नए वजीर इस्माइल राहू की तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर सिंध ने इस्माइल राहू से हल्फ लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्माइल राहू वजीर मेहनत सिंध होंगे। सबाई वजीर सईद गनी से महकमे बल्दियात वापस ले लिया। नासिर शाह नए वजीर बल्दियात होंगे। जाम खान शोर को इजाफा महकमे PNW का कलमदान दे दिया गया। सईद गनी को महकमे सोशल प्रोटेक्शन दिया गया। जब्बार खान से महकमे खुराक वापस ले लिया गया। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, लेकिन उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। सपोर्ट करने के मुख्तलिफ तरीके कार होते हैं और एक ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप आगे जाके क्या करें, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो आज आप क्या करें।
पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, रिलीफ के मामले पर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज आमने सामने। बिलावल भुट्टो का BISP के जरिए मुतासरीन की इमदाद का मुतालबा। पहले प्रोग्राम की तारीफें, फिर यूटर्न लेने पर अफसोस का इजहार। वज़ीर पंजाब भी मैदान में आ गयी। पीपल्स पार्टी पर सख्त तनकीद, कहा कि अपने मशवरे अपने पास रखें, मुझे ना सिखाएं कि रिलीफ कैसे देना है, आप सिर्फ सियासत में मसरूफ हैं। सदर बिलावल अपने लोगों को लगाम डालें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की, वो बात उन्होंने हमेशा और पीपल्स पार्टी ने की, वो वफाकी हुकूमत से बात की। जैसे ये सैलाब शुरू हुआ, वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि तनकीद अब उनके आपसी क्या मसाइल है मुझे समझ में नहीं है। हम अपील कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे, क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ये मशवरे आ रहे हैं। तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए है? जब भी चेयरमैन साहब फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ करते हैं, तो पंजाब हुकूमत को एतराज होता है कि जी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ क्यों कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे, सिर्फ रिलीफ में इमदाद की अपील का कह रहे हैं। हम बात विफाक से करते हैं, मसला पंजाब हुकूमत को हो जाता है। बिलावल भुट्टो ने इमदाद की बात विफाक को कही। बिलावल भुट्टो तारीफ वज़ीर आज़म की करते हैं तो तकलीफ पंजाब हुकूमत को होती है। शर्जील मेमन का पंजाब हुकूमत पर तंज, कहा कि आदमी बिरादरी से अपील करने वाला खुददार नहीं, ये बात ठीक नहीं है। पीपल्स पार्टी का गंदम पॉलिसी पर IMF से बात करने का भी मुतालबा। शर्जील मेमन साहब, लाहौर आए, आपको दिखाते हैं कि लाहौर में काम कैसे हो रहा है। आए देखें और सीखें कि काम कैसे किया जाता है। अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन को आड़े हाथों ले लिया। बोली कि अच्छी बात है, कल तक आप सैलाब पर सियासत कर रहे थे और अब हाथ खींच लिया। पंजाब में गंदम सिंध से भी ज्यादा हुई, कमी का सामना आपको है। मरियम नवाज ने पंजाब का मुकदमा लड़ा। अगर आप मुतासिरीन के लिए कुछ नहीं कर सकते तब फजूल ज़बान दराजी से गुरेज करें। पंजाब में सैलाब गुजर गया मगर तबाहकारियां जारी। पाकपतन में रियासत लुश के किनारे आबाद गांव मुकम्मल तबाह। जलालपुर बीरवाला की दर्जनों बस्तियां ताहाल ज़ेरे-आब, शहरी घरों को ना लौट सके। सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 13वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। बहाली के लिए पानी के उतरने का इंतजार जारी। दूसरी जानिब दरिया सिंध में कोटरी के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, कच्चे के 10 देहात ज़ेरे-आब आ गए। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट पास करना लाजिम। ओवरसीज पाकिस्तानीज के बच्चों के लिए MD कैट में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लिस्ट में नाम आने पर उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 1/3 फीस देना होगी। साहिबाल के कार्डिक मरकज में सर्जरी के आगाज को खुशाइद करार दिया गया। पंजाब में स्मोक मैनेजमेंट प्लान तैयार। पंजाब स्मोक मैनेजमेंट कमेटी ने सूबे के पहले फज़ाई आलूदगी का मयार बताने वाले जदीद निज़ाम के नफाज की मंजूरी दे दी। पंजाब में स्मोक के खात्मे के लिए 12 ड्रोन स्क्वाड्स और 8 ई स्क्वाड्स ने काम शुरू कर दिया। पंजाब में रोशनियों की मदद से स्मोक की निशानदेही की जाएगी। धान की फसल की कटाई के लिए जदीद मशीनरी मिलेगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक की सूरत हाल देख कर मजीद फैसले करेंगे। इंसानी स्मगलर्स की जानिब से इदारों को बेवकूफ बनाने की कोशिश नाकाम। जाली फुटबॉल टीम के बाद बैरून मुल्क जाने वाली जाली मार्शल आर्ट्स टीम जेर हिरासत। जाली टीम को फैसलाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। रूस जाने वाले 5 जाली खिलाड़ी परवाज से ऑफ लोड कर दिए गए। तर्जुमान FIA के मुताबिक रूस जाने वाले 5 जवानों पर शक हुआ। तफ्तीश से मालूम हुआ कि खिलाड़ी बनकर जा रहे हैं। नौजवानों के पास कोई सबूत नहीं थे। की लाज रखी। एहसाब शक्ल मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दे दी।
بنگلہ دیش کو شکست دینے کے بعد پاکستان ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ 136 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیشی ٹیم 124 رنز پر ڈھیر۔ میچ میں حارث روف کی بہترین بالنگ 3 کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگایا۔ ساحل میوب اور شاہین آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔